discuss a very important topic and very interesting topic, work done. Why did I say it is very interesting? In our daily life, we generally say we are doing work, but science says no, you are lying. It is not in the category of work done. Generally, when we are busy in doing our homework, we say I am doing work. Mama or any other person is cooking food. That person says I am busy in doing a work. But science says no, it is not in the category of work done. It should not be considered as a work done. Why it is not so? Let's see here. We are discussing here work done by a constant force. Work done by a constant force. What is meant by constant force? Constant force is the force whose magnitude remains constant throughout the time. एक ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, it is known as constant force. Now, if you apply a constant force on a particular object, means you are trying to do work. You are applying a force to complete your work done. So therefore, that force, that constant force will do a work. But what is the condition of doing work done? There is a condition. According to science, work by a constant force will be done only if work by a constant force will be done only if a force applied produces a displacement to a body in the direction of force applied. What it means, according to science, work by a constant force will be done only if the force applied produces a displacement to the body in the direction of force applied. मीन्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, in that case work will be done by that constant force. Where suppose it is an object and it is the force applied like this, and this force applied produces the displacement in the given object. That means this force completes a work done. सपोज ये आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, इसका मास है स्मॉल m, हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे फोर्स है और इसको इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया है, एंड द फोर्स डिस्प्लेसेस दैट ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन. इट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड. इट इज द मास. It is its initial position, it is its final position. Initial final position के बीच का जो separation होता है, इसी को हम displacement कहते हैं. तो this force produces a displacement in its own direction, and therefore this force will do a work. Is that clear? Now, if you will apply a constant force and it will produce a displacement, then how will you calculate the work done? Let's see. Work done is equal to magnitude of force applied multiply displacement produced. Work done is equal to magnitude of force applied multiplied displacement produced. Means work done is equal to force multiplied displacement. And displacement as a symbol is written here like S.
एस से हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ व्हाट, अब अगर आपने कैलकुलेट किया है तो वर्क डन को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसको आप लिखोगे तो उसके लिए मुझे यूनिट चाहिए। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन is joule, J-U-L-E, joule, or you can say Julie, capital J, it is its symbolic form. CGS unit of work done. What is the CGS unit? Is ERG, erg. CGS unit of work done is erg. And yes, what is the relation between joule and erg? Means relation between SI unit of work and CGS unit of work. What is the relation? The relation between these two quantities is 1 joule is equal to 10 power 7 ergs. So 1 joule is equal to 10 power 7 ergs, and that means joule is a greater unit of work done in comparison to erg. Is that clear? So it is the relation, simple relation, work done equals to force into displacement. SI unit of work done will be joule, CGS unit of work done is erg. And the relation between CGS and SI unit is 1 joule equals to 10 power 7 ergs. Now sometimes there is a question, define 1 joule of work done. So if we write here the question, define 1 joule of work done. How will you explain this? इसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे एक चीज जानने की जरूरत है, और वो क्या है? वो ये है कि आप जो 1 जूल है मींस एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, आप इसको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट के टर्म्स में लिखेंगे सबसे पहले। तो जूल इज एसआई यूनिट एंड देयरफॉर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी हम यूज करने जा रहे हैं। सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज 1 जूल, फोर्स विल बी 1 न्यूटन, SI unit of force will be 1 Newton, and SI unit of displacement is meter. So it is 1 meter. So work done is 1 joule, then force will be 1 Newton and displacement will be 1 meter. Now this statement, this mathematical statement should be converted into words. कैसे आप उसे convert करोगे? उसको convert करने का एक तरीका है, क्या है? आप इसी को, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वर्क डन है वो फोर्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए आप इसको उसी के फोर्स के वर्क डन के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे आप? इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर in its own direction, then the work done by the force will be 1 joule. Clear? क्या लिखोगे? If the force of 1 Newton, the force of 1 Newton displaces the body by 1 meter. Clear? If the force of 1 Newton displaces the body by 1 meter, then work done by the force will be 1 joule. Then work done by the force will be 1 joule. Simple. तो ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ था, हमने इसी को सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, हमको जूल की डेफिनेशन मिल गई। व्हाट इज 1 जूल? 1 जूल इज द वर्क डन, नो डाउट, बट वो वर्क डन करेगा कौन? The force of 1 Newton which produces a displacement of 1 meter in its own direction. ठीक है, हमें in its own direction भी इसको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर हो गया? ये आप इस तरह से 1 जूल को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? अब हमें एक टर्म आया, जैसे हमने यहाँ पे जूल यानी एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन को मैंने डिफाइन किया है, तो क्या हम इसी तरह सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन को भी डिफाइन कर सकते हैं? हम बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ। 1 जूल है, हमने जूल को हटा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डिफाइन 1 अर्ग। मुझे क्या डिफाइन करना है? 1 अर्ग डिफाइन करना है। अब कैसे करेंगे? तो देखो ये सीजीएस यूनिट है, तो मुझे अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सीजीएस यूनिट लिखनी होंगी। न्यूटन हटा दिया, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइम, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। अब इसके, और ये जो आपका वर्क डन है उसकी सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग।
अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वर्ड्स में लिख देंगे। 1 dyne displaces the body by 1 centimeter, then work done by a force will be 1 erg. Is that clear? तो हम इस तरह से 1 erg and 1 joule दोनों को ही यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। But one thing should be remember that the force displaces the body in its own direction. हमें जब डेफिनेशन लिखनी है तो वो एक कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। कीवर्ड विल बी, वो कीवर्ड क्या होना चाहिए, द फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी बाय 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपने खुद के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लिया। अब कभी कभी हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें जो हमारा वर्क डन है और जिसमें हमारा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उसमें मैंने क्या देखा कि आपका जो वर्क डन होगा वो तभी होगा जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है। अगर ऐसा है देन द फोर्स विल डू अ वर्क। But sometimes we see that force and displacement both are in different direction. It is the direction of force and it is the direction of displacement. इसे आप कैसे मैनेज करोगे? तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ये देखो, ये एक स्मॉल एंगल, छोटा सा एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा कह सकते हैं। Angle formed between force and displacement, between the direction of force and direction of displacement is theta. अब ये जो आपने एंगल थीटा है इसी के बेस पे हम यहाँ पे वर्क डन को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, करेंगे। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये कंडीशन आएगी कहाँ पे, जैसे आपने ट्रॉली बैग देखा होगा। ट्रॉली बैग आप क्या करते हो, ट्रॉली बैग को हम एक पर्टिकुलर एंगल पे पुल करते हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट आपके पीछे पीछे हॉरिजॉन्टल होता है। What about the pulley on the railway stations, platform? जो पुलीज होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, कैसे, आपके लगेज को कैरी करके। तो लगेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट क्रिएट करेगा, पुली उस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द पुली इज अपवर्ड, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यू, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो फोर्स वो अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ऐसी कंडीशन में हमें अगर वर्क डन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या है डायग्राम, तो देखिए सपोज ये हमारा एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और इस सरफेस पे ये हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ऑफ मास स्मॉल m। इस पे इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज थीटा। ये इस तरह से एक एंगल है और ये डायग्राम बन गया। अब ऐसी कंडीशन में आपको जो वर्क डन निकालना है, वर्क डन, अब यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ऑफ कोर्स हम इस पे उस फॉर्मूले से डायरेक्ट रिलेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम एक नया रिलेशन लिखने जा रहे हैं। और वो रिलेशन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W for work done, F for force applied, S for displacement produced, and theta, what is theta? Theta is the angle between the direction of force and the direction of displacement. What is theta? Theta is the angle between direction of force and direction of displacement. दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। एंड कॉस एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो आप लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, ठीक है ना, या आप मैथ्स में पढ़ रहे हो इसको। ओके, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है वो इस कंडीशन में आप कोई भी एंगल यहाँ पे बन सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी बनेगा, 60, 30, 45, एनीथिंग। आप यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, अब इस रिलेशन के लिए जैसे मैंने 3 एंगल्स बताया, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो उसी को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं केसेस के फॉर्म में। कैसे, तो सपोज करते हैं एक पहला केस, और क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट्स मीन, देखिए ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे लाई कर रहे हैं। अभी एंगल बन रहा है, ये इनके बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है। अब अगर एंगल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल खत्म, एंगल है ही नहीं। और अगर होगा ही नहीं एंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। वही कंडीशन यहां पे भी आएगी। थीटा इक्वल्स टू 0 मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जो दोनों होंगे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो वर्क डन विल बी F as cos थीटा, cos थीटा में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये पूरा आंसर क्या आएगा इसका 1। सो वर्क डन विल बी F इंटू एस। आप इसको +1 कह सकते हो, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने अभी इससे पहले जनरल वे में पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से भी उस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 लगा दिया था। आप 1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप क्या कह सकते हो, if force and displacement are in same direction, in that case work done will be the product of force applied and displacement produced. If the force and displacement are in the same direction, then the work done by the force will be the product of force applied and displacement produced. It is the work done. Is that clear? अब यहाँ पे ये जो वर्क डन है उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखनी है। In this case, theta equals to 0 in the same direction, इस कंडीशन के लिए work done is maximum। जो work done है वो क्या है, maximum है and positive। work done जो होगा वो maximum होगा और positive होगा, ठीक है। तो आप यहां से इस कंडीशन में फर्स्ट केस में हमें ये देखिए चीज मिल गई। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि अगर हमारा जो वर्क डन मैक्सिमम हमें चाहिए तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो आप तुरंत उसको बता सकते हो कि उसका जो वर्क डन है मैक्सिमम तभी हो सकता है, वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी मैक्सिमम ओनली इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, क्लियर। अब हमारा जो सेकंड केस है वो क्या है, सेकंड केस थीटा इक्वल्स टू 0, एक केस ये हो गया। अब हम इसको देखो यहां से इरेज कर रहे हैं और यहां पे हम दूसरा केस लिखने जा रहे हैं। नाउ द सेकंड केस इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाट इज द सेकंड केस, थीटा इज 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, फोर्स अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ऐसी कंडीशन में आपको देखो क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो cos थीटा मींस cos 90 इक्वल टू 0। cos 90 क्या होता है, 0। स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ये ऐसे आ गया। And now in this case work done will be F as cos 90। cos 90 is 0, therefore total work done will be 0। ये कुछ इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हो। अब ऐसी कंडीशन में जो आपका वर्क डन मिलेगा वो क्या होगा, वर्क डन इज 0। और इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो मिनिमम वर्क डन होगा। सो वर्क डन विल बी मिनिमम ओनली इफ the work done is 0, and when the work done is 0, when theta is 90, that means force and displacement are perpendicular to each other. It is the case 2 when theta equals to 90 degree in that case. Clear? अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका केस 2 है वो उसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं।
अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, केस 2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय अ कुली ऑन work done by a pulley carrying a load is 0. Work done by pulley carrying a load is 0. एक पर्टिकुलर कुली है और जो इस लगेज को कैरी कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुली का जो फोर्स है वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द कुली इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट जस्ट बिहाइंड यू, आपके पीछे पीछे जाएगा, और इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसी कंडीशन में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90। सो वर्क डन बाय द कुली कैरिंग अ लोड इज 0। वर्क डन बाय अ कुली कैरिंग अ लोड इज 0। तो यहाँ पे तो साइंस ने एकदम पैटर्न ही चेंज कर दिया। क्या कहा कि अरे कुली ने तो कोई वर्क डन ही नहीं किया है, और अगर वर्क डन नहीं करेगा तो मुझे उसे पे नहीं करना है, मतलब मुझे उसको अब पे नहीं करना है। नहीं, जब तक मुझे नहीं मालूम था कोई बात नहीं थी, बट अब मुझे मालूम है तो अब हम कुली को उसका पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज उसने कोई वर्क डन नहीं किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहा है। और कभी कभी हमको साइंस से हट के बीइंग अ ह्यूमन हर्ट से भी सोचना पड़ता है। तो क्योंकि उसने हमारी हेल्प की है इसीलिए हम उसको उसका मेहनता न देंगे। इज दैट क्लियर? खैर ये तो एक अलग चीज हो गई। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो हो सकता है वो ये है, अर्थ एंड इट इज अ सैटेलाइट। ये हमारे पास एक सैटेलाइट है जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में रन कर रहा है, और ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में रन करेगा, उसका सेंटर क्या है, अर्थ है। तो अर्थ उसे अपने ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू इस तरह से अट्रैक्ट करेगी, तो इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ठीक है ना। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सैटेलाइट का वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ये आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हो। तो किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। अब फिर से देखिए, इट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट विल बी द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो अगेन द वर्क डन विल बी 0। लेकिन ये वर्क डन करता कौन है, ये किसके लिए वर्क डन आया, फोर्स किसने अप्लाई किया है, अर्थ ने, इसीलिए वर्क डन किसका है, अर्थ का है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या होगा, वर्क डन बाय अर्थ ऑन अ रनिंग सैटेलाइट। रनिंग सैटेलाइट मींस सैटेलाइट स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अर्थ उसको अपने डायरेक्शन में पुल कर लेगी, खींच लेगी। Is that clear? तो इस तरह से हम यहाँ पे इन दो एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स है, जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। Our next case is third case, and therefore and the for the angle of theta is 180 degree. हम फिर से वो डायग्राम यहाँ बना देते हैं। जैसे it is the force and it is displacement. Angle between them is theta. Now this angle in the case 3, this angle is 180 degree. For the third case, theta is 180 degree. What it means? It means at this position force will be like this and displacement is like this. That means both are in opposite direction. Force and displacement in opposite direction. दोनों ही क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 180 है तो cos 180 कितना होगा बेटा, ये भी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए cos की वैल्यू हमें याद होना चाहिए, इट विल बी -1। +1 होता तो हम प्लस ना लगाते चलता, बट यहाँ मुझे माइनस शो करना पड़ेगा, तो इट इज -1 एंड देयरफॉर वर्क डन विल बी f s cos 180 एंड इट इज माइनस ऑफ f into
फिर से देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे पहले वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास फिर से आ गया। बट यहाँ पे ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन इस वर्क डन के नेचर को डिफाइन करता है। क्या है वर्क डन का नेचर? नेचर बता रहा है कि वर्क डन नेगेटिव होगा, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर मिनिमम नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब आपका थीटा 180 होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ देयर मे बी टू कंडीशंस फॉर जीरो वर्क डन। हम लोगों ने जीरो वर्क डन के लिए एक कंडीशन पढ़ा जो केस 2 से रिलेटेड था। अब वहां पे जो केस 2 है उससे अगर उसको अलग हटा दें तो हमारे पास एक और कंडीशन है, जब वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी जीरो। वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी जीरो। क्या कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपको मालूम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलके तब वर्क डन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो फोर्स, मैंने क्या कहा? वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो, मींस आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स आपने अप्लाई किया है बट वर्क डन इज जीरो। तो ये कब पॉसिबल है? ओनली इफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इज जीरो। ये तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कब हो सकता है? जैसे बहुत ही यूजुअल एग्जांपल है, ये वॉल है, हम वॉल को क्या करना चाहते हैं? पुश करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर की ओर पुश कर देंगे, तो क्या करोगे आप? तो आप इसमें लगातार कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स तो अप्लाई होगा, दैट इज मींस फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट उसका जो रिजल्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो हमारा क्या है? लगातार जीरो बना हुआ है। और अगर वो जीरो है तो हमारे फोर्स ने जो वर्क डन किया वो क्या हो जाएगा? जीरो। सो इट इज एन अनदर कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन की दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 90, force and displacement should be perpendicular to each other. In that case work done will be zero. And what is second? This one. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अगर हमको इसके वर्क डन का नेचर समझ में आ गया, एफ एस कॉस थीटा क्लियर हो गया, तो हम इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। वर्क डन बाय अर्थ ऑन अ रनिंग सैटेलाइट इज जीरो, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। किस तरह से कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, ये भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी में अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया, फ्यूल आपका क्या हो गया? कंज्यूम हो गया फुल्ली, अब आपको फिर से उसमें डलाना पड़ेगा पेट्रोल। ठीक है, अब आप उसमें पेट्रोल इनपुट कराना चाहते हो, इन दैट केस क्या होगा? आप उसको, क्योंकि अब स्टार्ट तो हो नहीं रही है, फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो चुका है, अब क्या होगा? अब आप उसे पुश करोगे। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, है ना? सो आप उसको पुश करने जा रहे हो, और आप जब पुश करोगे तो वो आपने फोर्स अप्लाई किया, और आप देखेंगे कि आपकी जो स्कूटी है वो उसी डायरेक्शन में रन कर रही है। सो वर्क डन बाय द फोर्स। तो आपने फिर से यहाँ पे क्या किया है? एक वर्क डन किया है। फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या किया? फुटबॉल को आपने क्या किया? किक करा, और जब आप फुटबॉल को किक करोगे तो ये आपका फुटबॉल अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, और आफ्टर सम टाइम वो इस पोजीशन को गेन कर लेगा। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट में किसका, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों क्रिएट होता है? इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे उसे किक किया था। एंड व्हाट इज द किक? किक इज द एक्सटर्नल एफर्ट, दैट इज फोर्स। और ये जो फोर्स है उसने फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, तो फिर से इस फोर्स ने क्या किया है? वर्क डन किया है। इसी तरह के कई सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ से हमारे सामने आ सकते हैं।